السلام علیکم۔ بہت عرصے سے بہت سے کولیگز کی طرف سے اور جونیئرز کی طرف سے ایک ریکویسٹ آ رہی تھی کہ جی ہمیں ریویو پیپر رائٹنگ کے بارے میں کچھ گائیڈنس دیں۔ تو میں کچھ ایک ہفتے سے اس کے اوپر کام کر رہا تھا، لٹریچر وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ تو میرا اپنا بھی ایکسپیرینس تھا کہ ریویو پیپر کیسے لکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے جو ہے وہ ریلیونٹ لٹریچر پڑھنا مناسب سمجھا، اور یقین مانیے کہ مجھے خود سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہے۔ تو یہ جو سیریز ہے، یہ میری کوشش ہوگی کہ میں 3 لیکچرز میں اس ٹاپک کو کور کروں کہ ہاؤ ٹو رائٹ اے ریویو پیپر، اور اس میں ہم اس کے بیسک آئیڈیا سے کہ ہمیں کیوں ضروری ہے ریویو پیپر لکھنا، فائدہ کیا ہوگا، اور پلان کیسے کرنا ہے، اسے سبمٹ کیسے کرنا ہے، تو ان سارے کانٹینٹس کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ تو اس پوری سیریز کو جب آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو مجھے بہت امید ہے کہ جو ہمارے ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا جو لوگ پوسٹ ڈاک کر رہے ہیں، تو وہ جو بھی بندہ جو ہے وہ ریویو پیپر لکھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ وہ جو ہے اس کے لیے کافی زیادہ گائیڈنس اویلیبل ہوگی، اور ان سجیشنز کے بعد جو ہے اس کے لیے کافی آسان ہو جائے گا کہ وہ اپنا ایک ریویو پیپر لکھ سکے۔ ریویو پیپر میں ایک چیز اور کور کرنا چاہتا ہوں کہ میں عمومی طور پہ لٹریچر ریویو جو کہ تھیسس کا پارٹ ہوتا ہے اس کو اور ریویو پیپر کو مورلیس ایک ہی چیز سمجھتا ہوں، لیکن اسی ایکسرسائز کے دوران مجھے یہ پتا چلا کہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو جو لوگ ابھی اپنا لٹریچر ریویو کے اوپر کام کریں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ کافی ہیلپ فل ہوگی، تاکہ لیٹر سٹیج پہ جب وہ اپنے لٹریچر آف ریویو چیپٹر کو پی ایچ ڈی میں سے یا ایم ایس میں سے اگر کسی ریویو پیپر میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی۔ اس میں جو کانٹینٹس میں کور کرنے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ وائی ٹو رائٹ ریویو پیپر۔ ہمیں وجہ تو پتا ہو، عمومی طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی پیپر چھپ جائے۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بہت سے اسٹوڈنٹس کے گروپس ہیں، 4-5 لوگ مل کے جی آئیں ہم ایک پیپر لکھتے ہیں، ریویو پیپر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ فیزیبل بھی ہے؟ کیا اس کا فائدہ بھی ہوگا کہ آپ جونیئر لوگ جو ہے وہ ریویو پیپر لکھ رہے ہیں؟ تو اس کو ہم طے کریں گے کہ ریویو پیپر لکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کے لیے فنڈامنٹل کانسیپٹس کیا ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کہ ریویو پیپر کے بیسکس کیا ہیں، مثلاً جب ہم پلاننگ سٹیج میں جاتے ہیں تو کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہم نے ذہن میں رکھنی ہے بیفور سٹنگ ڈاؤن اینڈ رائٹنگ اے ریویو پیپر۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ پیور رائٹنگ کے اوپر بات ہوگی کہ رائٹنگ کے اندر ہم نے کون کون سے آسپیکٹس جو ہے وہ ایک ریویو پیپر کے اندر ہمیں کور کرنے چاہیے۔ اور فائنل ہے کہ فیڈ بیک اینڈ سبمیشن آف اے ریویو پیپر، تو اس کو ہم جو ہے وہ کس طرح سے لے کے چلیں گے۔ تو ان کو میں نے جو ہے وہ پہلے 2 پوائنٹس کو انڈیویجول ویڈیو میں رکھا ہے، اور آخری جو تیسرا اور چوتھا پوائنٹ ہے اس کو ایک ہی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ 3 ویڈیوز اس لیے بنائی ہیں تاکہ آپ سیکوینس میں جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اور once you understand all the ingredients, probably you will be in a position to write a really good review paper. We start with why we need a review paper. جو سب سے اہم بات ہے کہ ریویو پیپر کی ضرورت کیوں ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت بہت زیادہ لٹریچر جو ہے وہ پبلش ہو رہا ہے، ریسرچ پیپرز پبلش ہو رہے ہیں ڈیلی، ہزاروں کے حساب سے جو ہے وہ نئے ریسرچ پیپرز جو ہے وہ فیلڈ کے اندر آ رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی ڈیٹا بیس اٹھا لیں، گوگل اسکالر اٹھا لیں، سائنس ڈائریکٹ اٹھا لیں، ACSR جس کو مرضی ٹچ کریں، بہت زیادہ پیپر جو ہے وہ پبلش ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے پیپر پبلش ہو رہے ہیں۔ تو کسی بھی ایک انسان کے لیے جو ہے وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سارے لٹریچر کو پڑھ سکے۔ تو اس میں جو ایک نیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسپرٹس اس فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد جو ہے وہ ایک ریویو پیپر کی شکل میں وہ جو بھی لٹریچر پبلش ہوا ہوتا ہے، جو نئی ڈائریکشنز نئے ٹرینڈز سامنے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک ریویو پیپر کی شکل میں پبلش کرتے ہیں تاکہ جونیئرز کے لیے، کولیگز کے لیے وہ ڈائمینشن جو ہے وہ ایک سمری کی فارم میں جو ہے وہ اویلیبل ہوں۔ دیکھیں، اگر ریسرچ پیپرز پڑھنے ہیں، فار ایگزامپل میں نے اپنے ریویو پیپر کے لیے کوئی 300 کے قریب ریسرچ پیپرز پڑھے تھے، تو آپ دیکھیں کہ مجھے 6 سے 9 مہینے تک کا ٹائم لگ گیا تھا اس کو کور کرتے کرتے۔ اٹس اے ہیل آف جاب۔ لیکن اب جو ریویو پیپر میں نے لکھا ہے وہ ہارڈلی 15 سے 20 پیجز میں اویلیبل ہے۔ تو 15 سے 20 پیجز کو پڑھنا اور اس سے سارا کچھ ایکسٹریکٹ کر لینا جو کہ 300 پیپر میں الگ الگ ہے، تو وہ ایک ہمارے لیے بہت ریزنیبل ایک پیس ہے۔ تو اسی ریزنیبل پیس کو ہم جو ہے وہ ریویو پیپر کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو یہ اہمیت بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ ریویو پیپر بیسیکلی ہر ایک خاص ٹائم سپین کے بعد اس فیلڈ کی سمری ہے جو کہ اس کے اندر پریویس ٹرینڈز کو، فیوچر ٹرینڈز کو پریڈکٹ کرتا ہے اور کورلیٹ کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس میں ریویو پیپر جو ہے وہ سمپل یہ ایک ایسی پریکٹس نہیں ہے
کہ آپ نے 20-25 پیپر پڑھے, ان کے سارے ریزلٹس ایک جگہ پہ ڈال دیے, ایک جنرل سی سمری بنا دی اور بس جی ہو گیا کام. اس میں ریویو پیپر جو ہے وہ ریسرچ پیپر کی طرح ہی ایک لاجیکل فلو میں چلتا ہے. آپ نے اسے کنکلوڈ کرنا ہے. بیسیکلی سے آپ پچھلے 3 سال کا لٹریچر ریویو کر رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ نے ان 3 سالوں میں اس فیلڈ کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کو ایک سمری کے فارم میں کنکلوڈ کرنا ہے, اور وہ لاجیکل کنکلوژن ہونا چاہیے. یعنی آپ ایک سیکوینس میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اس اینڈ تک, لاجیکل اینڈ تک پہنچیں. اگر وہ ڈسرپٹیو ہوگا یا ڈسکریٹ ہوگا تو اس سے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ڈفرینٹ چنکس آف انفارمیشن جو ہے وہ آپ نے ایک جگہ پہ پلیس کر دی ہیں. تو دیٹ از ناٹ لائک اے ریویو پیپر, دیٹ ول بی جسٹ اے سمرائزیشن, جنیرک سمرائزیشن آف اے فیلڈ. تو یہ بیسیکلی نیڈ کے ساتھ ساتھ اب ہمیں اپنے ایمز کی طرف بھی ڈرائیو کر رہا ہے کہ ریویو پیپر بیسیکلی ہونا کیسا چاہیے. اس کے بعد جو پوائنٹ میں نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا وہی اسی کی طرف واپس آ رہا ہوں کہ ہم تھیسس, پی ایچ ڈی تھیسس کے لیے بھی لٹریچر ریویو کرتے ہیں, ایم فل تھیسس کے لیے بھی لٹریچر ریویو کرتے ہیں. وی پٹ لاٹ آف ایفرٹ, اسپیشلی پی ایچ ڈی کے لیول پہ بہت زیادہ اسکیل اپ ہو جاتا ہے, پیپر پڑھتے ہیں. تو جب ہم اس لٹریچر ریویو کو لکھ رہے ہوتے ہیں, گو کہ ہم اس وقت بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف جاتے ہیں کہ میں اسی اپنے لٹریچر ریویو کو ریویو پیپر میں کنورٹ کر دوں. لیکن ایک وی ہیو ڈن اے ہیل آف ایفرٹ دیئر, تو وائی ناٹ ٹو کنورٹ دیٹ ایفرٹ انٹو اے میننگ فل تھنگ جو کہ ایک ریویو پیپر کی شکل میں ہوگا. لیکن ہمیں ریویو پیپر کے ایمز کو بہرحال میٹ کرنا ہوگا. اور دوسری چیز میں آپ کو یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم انڈر گریڈ میں تھے تو ہمارے ہاتھ کچھ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے ایم فل کے تھیسس ہاتھ لگے. تو اس میں نے جو چیز نوٹ کی وہ یہ ہے کہ جی ہر پیپر کا ایبسٹریکٹ ایز سچ لٹریچر ریویو میں ڈالا ہوا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ریشنل نہیں ہے, اس کے اندر لاجیکل فلو نہیں ہے, تو اس سے کوئی میننگ فل انفارمیشن جو ہے وہ نہیں نکلتی. جتنا زیادہ آپ کا تھیسس کا لٹریچر ریویو اسٹرانگ ہوگا اور ریشنل میں ہوگا, لاجیکل فلو میں ہوگا, آپ کے ریزلٹ اینڈ ڈسکشن کے آرگومنٹس کنسٹرکٹ ہو چکے ہوں گے, آپ کو پروسیس سمجھ آ چکا ہوگا, اسی پروسیس کی سمجھ سے آپ نئے کوسچنز ریز کر سکتے ہیں. تو اسی لیے تھیسس کا جو لٹریچر ریویو ہے اس کو لائٹ نہ لینا چاہیے. اور جب آپ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اگلے ایک سٹیپ اور اسی لٹریچر ریویو کو جو ہے وہ ایک ریویو پیپر میں بھی کنورٹ کر دیں. پبلیکیشن کی پبلیکیشن ہوگی آپ کے پاس, اور بہرحال آپ کی اتھینٹسٹی بھی ہو جائے گی, بیکاز یو ہیو اسپینڈ 3-4 years ورکنگ آن دا سیم پرابلم ان ڈفرینٹ ڈائمینشنز. تو آپ ایک ایکسپرٹ کے طور پہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کیش کرا سکتے ہیں. فائنل چیز یہی ہے کہ لٹریچر ریویو میں چونکہ آپ 100-200 ڈپینڈنگ آن دا میگنیچیوڈ آف دا ورک, آپ اتنی ایک اچھی لاجیکل سمری ان دا فارم آف ریویو پیپر پریپیئر کرتے ہیں, تو یوزولی جو ریویو پیپرز ہوتے ہیں ان کی سائٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ جو نئے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں وہ بھی اسی کو پڑھ رہے ہیں. ایک بندہ جو اسی سے قریب ترین فیلڈ میں کام کر رہا ہے وہ بھی آپ کے پیپر کو پڑھ کے تھوڑی سی نئی ڈائمینشنز میں جانے کی کوشش کرے گا, تو اس سے الٹیمیٹلی آپ کی سائٹیشنز بڑھیں گی. جب آپ کی سائٹیشنز بڑھتی ہیں تو اسی حساب سے جو ہے وہ آپ کی ریکگنیشن جو ہے ان دا فیلڈ وہ بھی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کی ایک جنیرک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک ریویو پیپر جو ہے وہ بایو فیولز کے اوپر جو ہے وہ چھپا تھا. ڈاکٹر چشتی کا, ان کا نام ڈاکٹر یوسف چشتی ہے, فیولز فرام مائکرو ایلجی کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے ایک, نہیں یہ نہیں تھا, ایل بی اے میں تھا, بایو ٹیکنالوجی ایڈوانسز میں یہ پیپر چھپا تھا, بایو ڈیزل فرام مائکرو ایلجی. آپ اس کی سائٹیشنز دیکھیں, صرف ایک پیپر کی سائٹیشن جو ہیں وہ دے آر اراؤنڈ 11,000. تو 13 سال پہلے جو ہے وہ ایک پیپر چھپا, اور میرا خیال ہے کہ آن ایوریج جو ہے وہ ہر سال اس پیپر کو 1,000 کے قریب جو ہے وہ سائٹیشنز مل رہی ہیں. ان کا نام تو پہلے اسٹیبلش تھا اس فیلڈ میں, اس کے بعد اب ان کا نام اور زیادہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے کہ ہی از ورکنگ ان دس سملر فیلڈ. تو یہ ہمیں جو ہے وہ ریکگنیشن بھی دیتا ہے, جو کہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ وی آر scientists, or we are group of scientists who are working in this particular field. تو اس لیے بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ 3 سال 5 سال جو ایک ہی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, تو آفٹر دیٹ ٹائم they need to make a review paper of that field. اپنا پرسنل ریسرچ ایکسپیرینس بھی اس میں ایڈ کریں, اور ساتھ میں پریویس لٹریچر کو بھی ریویو کریں,
और एक नई जो है वो डायमेंशंस जो हैं वो लोगों के सामने या अपने जूनियर रिसर्चर्स के सामने जो है वो रखें। अब रिव्यू पेपर की ज़रूरत कब पड़ती है, इस मामले में एक बड़ा ज़बरदस्त एक मेरे सामने से रीडिंग गुजरी है, 10 सिंपल रूल्स फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू क्रॉस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में ये पेपर जो है वो छपा था 2013 के अंदर। तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि लिटरेचर रिव्यू पेपर लिखने की ज़रूरत हमें कब जो है वो पेश आती है। अब इस केस में हमारे पास एक्स एक्सिस पे है कि अमाउंट ऑफ लिटरेचर रिव्यूज अवेलेबल, आप इसे कह लें नंबर ऑफ रिव्यू पेपर्स अवेलेबल, और वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स अवेलेबल। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। पहला जो क्वाड्रेंट है, अगर हमारे पास रिव्यू पेपर भी कम है और उस फील्ड के अंदर रिसर्च पेपर्स भी कम हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी उस फील्ड को मैच्योर होने की ज़रूरत है, उसके अंदर नए रिसर्च क्वेश्चन जो हैं वो क्रिएट होने चाहिए, अदरवाइज वो फील्ड जो है वो मैच्योर ही नहीं हो पा रहा, वो खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे ये है कि रिव्यू पेपर्स हमारे पास ज़्यादा हैं लेकिन रिसर्च पेपर्स हमारे पास कम हैं। तो इस केस में जो है वो हमें अगेन उसी फील्ड में ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है कि अभी उसके अंदर और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए। सिंपल रिव्यू पेपर से जो है वो हम अपना मामला जो है उसे हल नहीं कर पाते। तीसरा केस हमारे पास ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ रिव्यू पेपर्स तो कम है लेकिन रिसर्च उस फील्ड के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब ये स्टेज है जिसके अंदर हमें जो है वो एक नया लिटरेचर रिव्यू या लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू पेपर की ज़रूरत है। और इसी तरह चौथे नंबर पे ये है कि रिसर्च भी बढ़ रही है, नंबर ऑफ रिव्यू पेपर्स भी आ रहे हैं, लेकिन अगेन देयर इज अ नीड फॉर अ रिव्यू पेपर बिकॉज जब रिसर्च बढ़ती है तो डायमेंशंस ऐड होना शुरू हो जाती हैं। तो जो नई डायरेक्शंस हैं, इमरजेंस है नए फील्ड्स की या कन्वर्जेंस है इन अनदर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, तो वहां पे जाके हमें जो है वो उन चीज़ों को देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल फोर्थ केस में आप ये देखें कि नैनो टेक्नोलॉजी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी पहले तो मटेरियल साइंस से शुरू हुई कि नैनो पार्टिकल्स बनाए जाएं। विद द टाइम लोगों ने उन नैनो पार्टिकल्स की अहमियत को डिफरेंट डायरेक्शंस में देखा है। उसी से नैनो रिएक्टर्स बनना शुरू हुए, ड्रग डिलीवरी के ऊपर काम शुरू हुआ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर काम शुरू हो गया, सोलर सेल में नई डायमेंशंस आ गई। तो जब हमारे पास रिसर्च किसी एरिया में बढ़ती है तो उसके साथ साथ हमें नए रिव्यू पेपर्स की ज़रूरत जो है वो बहरहाल पड़ती रहती है। और स्पेशली ऐसे फील्ड्स जिनके अंदर बहुत तेज़ी से रिसर्च हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी को देख लें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को देख लें, मटेरियल साइंस को देख लें, इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग में देख लें, जो भी ऐसे फील्ड हैं जो ग्रोइंग है जिनके अंदर रिसर्च बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे आपको हर एक खास टाइम के बाद रिव्यू पेपर की ज़रूरत पड़ती है टू समराइज। क्योंकि अगेन जो पहले पॉइंट मैंने आपके सामने रखा था कि हर किसी के पास इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि वो इतना ज़्यादा लिटरेचर पढ़ सके। तो उस केस में रिव्यू पेपर उसे इमीडिएटली हेल्प आउट करता है कि देयर इज अ समरी, देयर इज अ रिव्यू पेपर ऑफ फ्यू पेजेस, इफ यू रीड सो यू कैन गेट द आइडिया व्हाट हैज बीन डन इन प्रीवियस 3 to 5 years। तो वो एक रिव्यू पेपर की शक्ल में जो है वो हमारे पास आ जाता है। देन कम्स के रिव्यू पेपर की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें एक है फुल रिव्यू पेपर और एक है मिनी रिव्यू पेपर। अब इस केस में आपको खुद से चूज करना है जर्नल जिसमें आप पेपर पब्लिश करना चाहते हैं, वो भी बाज़ औक़ात आपको गाइड करता है। कुछ ऐसे जर्नल हैं जो हैं ही रिव्यू जर्नल्स, जैसे केमिकल रिव्यूज़ है, केमिकल सोसाइटी रिव्यूज़ है, रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यूज़ है। ऐसे जर्नल जो सिर्फ रिव्यू पेपर पब्लिश करते हैं, तो वहाँ पे तो वो अमूमी तौर पे फुल लेंथ रिव्यू पेपर एक्सेप्ट करते हैं। जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनके अंदर एक मिक्स चल रहा होता है कि वो रिव्यू पेपर भी एक्सेप्ट करते हैं, रिसर्च पेपर भी एक्सेप्ट करते हैं, और रिव्यू पेपर के अंदर भी वो मिनी रिव्यू पेपर को आपको एक ऑप्शन देते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि फील्ड इमर्जिंग है, उसके अंदर इतना डेटा अवेलेबल नहीं है, तो भी मिनी रिव्यू पेपर की तरफ आप जा सकते हैं क्योंकि वो कम शॉर्ट स्पेस और शॉर्ट टाइम में कवर हो सकता है। अगर आप समझते हैं कि डायमेंशन ही नहीं है किसी रिसर्च के अंदर, फील्ड मैच्योर है लेकिन एक नई डायमेंशन आ रही है, तो उसी सिर्फ पर्टिकुलर दैट डायमेंशन को आप कवर करना चाहते हैं, तो वो मिनी रिव्यू पेपर में कवर हो सकती है। क्योंकि फुल लेंथ रिव्यू पेपर उस फील्ड में अवेलेबल है, तो आप क्विकली शॉर्ट टाइम के अंदर आप उस रिव्यू पेपर को कवर कर सकते हैं। फुल रिव्यू पेपर के अंदर आपको सारी डिटेल आपके सामने अवेलेबल होती है। तो फुल के अंदर आपको टाइम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है,
और उसके साथ साथ आपको राइट अप भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। मिनी रिव्यू पेपर के अंदर टाइम इन्वेस्टमेंट भी रिलेटिवली कम है और आपके पास स्पेस भी उतनी ही कम अवेलेबल होती है कि आपने थोड़े पेजेस के अंदर अपने पेपर को जो है वो अकोमोडेट करना होता है। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव और इंटीग्रेटिव रिव्यू पेपर्स। डिस्क्रिप्टिव ऐसे है कि जो भी लिटरेचर पब्लिश हुआ है रिसर्च पेपर्स के फॉर्म में, अब वो उनके मेथोडोलॉजी को भी इन्वेस्टिगेट कर डिस्क्राइब करते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस को भी डिस्क्राइब करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशंस को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो जो भी स्टडी करते हैं उसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हुए जा रहे होते हैं। इंटीग्रेटिव के अंदर वो अमूमी तौर पे जो है वो क्रिटिकल डिस्कशन के ऊपर बात करते हैं कि जी ये पूल ऑफ रिजल्ट्स है, अब इसको एक ही पूल को यानी 20 पेपर 25 पेपर से एक पैरामीटर का जो भी डेटा है उसको एक टेबल की फॉर्म में रखें और फिर उसको एज अ टेबल यानी एज सिंगल स्टडी जो है उसे डिस्क्राइब करें कि जी उसके अंदर क्रिटिकल डिस्कशन क्या बनती है। वो आपके पास इंटीग्रेटिव रिव्यू पेपर्स हैं। मैं आपको वैसे सजेस्ट करूंगा कि चूंकि इन एरियाज में मेरा काम नहीं है तो आप इसको एक दफ़ा लिटरेचर से दोबारा गूगल सर्च कर लें कि इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन और बाउंड्रीज क्या हैं। फाइनल है आपके पास नरेटिव और सिस्टमैटिक। नरेटिव में ये है कि आप क्वालिटेटिवली काम करते हैं, ठीक है, कि आप क्वालिटेटिवली जो भी लिटरेचर पब्लिश हो जाता है तो उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। सिस्टमैटिक के अंदर ये है कि आप किसी जो लिटरेचर पब्लिश हो चुका है उसकी बेस पे कोई एक हाइपोथेसिस लेते हैं और फिर पब्लिश्ड लिटरेचर की बेस पे उस हाइपोथेसिस को आप अनबाइस्ड तरीके से प्रूव करते हैं या उससे एग्री करते हैं या उससे डिसएग्री करते हैं। तो ये आपके सामने सिस्टमैटिक रिव्यू पेपर हो जाता है। मेटा एनालिसिस में ये है कि आप क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स को उठाते हैं और उनको क्वांटिटेटिवली डिस्कस करते हैं, तो ये आपके सामने जो है वो मेटा एनालिसिस बन जाता है। और ये सारे जो टाइप्स ऑफ रिव्यू पेपर्स हैं ये एक फील्ड में एप्लीकेबल नहीं है। कुछ फील्ड्स में अमूमी तौर पर साइंस के लोग जो हैं वो फुल और मिनी रिव्यू पेपर के ऊपर काम करते हैं। सोशल साइंस के लोग जो हैं वो मेरी डिस्क्रिप्टिव के ऊपर काम कर रहे हों। मेटा एनालिसिस में भी इसी किस्म का, सोशल साइंसेज मेडिकल साइंसेज में डिफरेंट किस्म की जो है वो रिव्यू पेपर की टाइप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो चूँकि मैं मेनली साइंस को एड्रेस कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको फुल या मिनी रिव्यू पेपर तक जो है वो महदूद रखूँगा। उसके बाद हमारे सामने जो है वो है कि जो हम रिव्यू पेपर लिखना चाहते हैं उसके एम्स अब हमारे सामने क्या होने चाहिए। हमने बेसिक्स तो देख ली हैं उसकी कि रिव्यू पेपर क्यों लिखना चाहिए, कब लिखना चाहिए और टाइप्स ऑफ रिव्यू पेपर हमारे सामने क्या है। तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम रिव्यू पेपर लिखने बैठे तो हमारे सामने कोई एम भी होना चाहिए। तो उसमें पहली बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी अर्ज की कि हमने सिर्फ डिफरेंट रिजल्ट्स को के चंक्स को उठा के एक जगह पूल अप नहीं करना, हमने उनके अंदर लॉजिकल फ्लो बनाना है और उन ट्रेंड्स को, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एब्जॉर्प्शन के ऊपर पीएच का इफेक्ट डिफरेंट पेपर से देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पीएच उसमें ट्रेंड्स ढूंढते हैं, ट्रेंड्स के साथ आप फिर उसके लॉजिक को कोरिलेट करते हैं। तो आपके सामने एक टेबल है जिसके अंदर 25 रिजल्ट्स हैं डिफरेंट पीएच के साथ, डिफरेंट किस्म की एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है। अब आप उसको एज अ वन पूल ऑफ स्टडी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये है क्रिटिकल डिस्कशन। आप उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। आपने जो टोटल ट्रेंड आपके सामने 25 पेपर का आ रहा है उसको डिस्कस करें कि अब ये हमारे सामने कौन सी चीज है, पीएच कैसे एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी को या एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को इफेक्ट करती है। तो दैट विल बी समथिंग मीनिंगफुल फॉर अस। तो एक बंदा जो अभी नया नया एब्जॉर्प्शन को स्टडी करना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि पीएच जो है उसका वर्किंग मैकेनिज्म ये है, एसिडिक पीएच में ये बिहेवियर होगा, बेसिक पीएच में ये बिहेवियर होगा। पीएच चेंज की वजह से एब्जॉर्बेंट की सरफेस करैक्टरिस्टिक्स ऐसे बदलती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को या एफिशिएंसी को इस तरह से इंप्रूव या डिप्रूव करती हैं। तो ये है उन सारे रिजल्ट्स की बेस पे क्रिटिकल डिस्कशन जो हमें चाहिए रिव्यू पेपर के अंदर। दूसरे नंबर पे जो एक सर्टन टाइम पीरियड हम डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 साल है, 5 साल है, डिपेंड करता है फील्ड किस हिसाब से मैच्योर हो रहा है, रिसर्च उसके अंदर पब्लिश हो रही है। तो अब उस फील्ड के अंदर जो डायनामिक्स है यानी ट्रेंड कैसे उस फील्ड के अंदर रिसर्च का ट्रेंड चेंज हो रहा है वो, या उस फील्ड के अंदर जो अचीवमेंट्स हुई हैं इन सर्टन टाइम पीरियड उनको आपने जरूर कवर करना है, डिस्कस करना है ताकि पता चले कि इस
पर्टिकुलर टॉपिक का पिछले 2-3 साल में क्या डायनामिक्स बनी है और इसमें कौन कौन सी अचीवमेंट्स आई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एब्जॉर्प्शन की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें शुरू में बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं जिसमें सिंगल पॉल्यूटेंट को लेके और सिंगल एडजॉर्बेट को लेके काम चलाया जा रहा था। फॉर एग्जांपल एक बायोमास ले ली और एक ही डाई ले लिया, उसको स्टडी करते रहे, अब हो गया जी काम। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों ने ये एतराज़ उठाना शुरू किया कि देखें जो रियल वेस्ट वाटर है उसके अंदर डाई भी मल्टीपल होते हैं, साल्ट्स आते हैं और केमिकल्स आते हैं, तो वो उस एक इनटेक के अंदर सब कुछ आता है, तो उनको पैरेलल या को एब्जॉर्प्शन को स्टडी करें, क्योंकि रियल टर्म में तो को एब्जॉर्प्शन ही होगी। तो उसके बाद जो सिंगल एब्जॉर्बेंट से सिंगल पॉल्यूटेंट से वो मल्टीपल पॉल्यूटेंट के अंदर या को एब्जॉर्प्शन में कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब ये एक नई डायमेंशन उसके अंदर ऐड हो गई है। तो को एब्जॉर्प्शन की केमिस्ट्री क्या वही है जो सिंगल पॉल्यूटेंट की है? तो ये वो चीजें हैं जो ओवर द टाइम चेंज हुई हैं रिसर्च फील्ड के अंदर। अब हमें यही चीजें जो है वो अकोमोडेट करनी है अपने रिव्यू पेपर के अंदर भी, कि ये ट्रेंड आया कहाँ से है, फिर जब ये ट्रेंड आया इसके ऊपर रिसर्च पब्लिश हुई, तो उस रिसर्च के अंदर जो है वो अब हमारे पास किस किस्म की अचीवमेंट्स अवेलेबल है। तीसरे नंबर पे जो भी रिव्यू पेपर है उसके अंदर ना सिर्फ हमने प्रीवियस अचीवमेंट्स को, डायनामिक्स को क्रिटिकली डिस्कस करना है, बल्कि हमें फ्यूचर डायरेक्शंस भी देनी है कि अब फ्यूचर रिसर्च जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि पहले सिंगल पॉल्यूटेंट के ऊपर एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा था, फिर मल्टीपल पे आ गया। अब मैं आपको एक और चीज कहता हूं कि अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है तो मल्टीपल में डाइज और केमिकल्स होंगे, लेकिन अगर वो इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर जो है वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में मिक्स हो रहा है, तो वहां पे तो फार्मास्यूटिकल्स भी आ रही हैं, वहां पे तो ऑयल एंड ग्रीस भी आ रही है, तो आप उनको रोक तो नहीं सकते एब्जॉर्प्शन से। तो इस किस्म के कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के अंदर क्या कोई नई रिसर्च डायरेक्शंस अवेलेबल हैं? जब आप किसी रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं तो याद रखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्ता जो ऑथर होता है वो दे रहा होता है कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर को मैंने स्टडी नहीं किया या इसको फर्दर इस डायरेक्शन में स्टडी होना चाहिए। ये बहुत एक आध लाइन आपको मिलती है रिजल्टेंट डिस्कशन में जाके। अब वो जो बेसिकली ऐसी लाइन है ना, वो है आपके फ्यूचर क्वेश्चंस, या उन्हें आप कह रहे हैं वो है आपका नॉलेज गैप। ठीक है, तो वो ऐसे जब आप अपने रिसर्च पेपर्स को, प्रीवियस पेपर्स को रिव्यू कर रहे होंगे, तो ऐसी छोटी छोटी लाइन्स जो हैं उनको आपने नोट करते जाना है, क्योंकि आपने रिव्यू पेपर के अंदर प्रीवियसली भी उसे कवर करना है और फ्यूचर के कुछ डायरेक्शंस भी छोड़ दी हैं कि इन एरियाज में अभी काम होना बाकी है, इनको एक्सप्लोर करना जरूरी है। वही नॉलेज गैप है। इसीलिए अगर आपको याद होगा तो रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में मैंने कहा था कि जब भी आप नया काम शुरू करने जा रहे हो, पीएचडी का, एमफिल का, या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, तो हमेशा रिव्यू पेपर से स्टार्ट करें, क्योंकि रिव्यू पेपर आपके सामने पिछले कुछ टाइम के सारे लिटरेचर को समराइज भी कर देगा, साथ में आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी रख देगा कि अभी इन क्वेश्चंस के ऊपर काम होना बाकी है। तो ये रिसर्च पेपर की हद तक आपको ये भी पता चल जाएगा। दूसरा सोर्स आपका अपना एक रिसर्च एक्सपीरियंस है, वो भी आपको कुछ क्वेश्चंस बता देगा। तीसरा जो सोर्स है वो है एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, कि जो नोन नाम है ना आपके फील्ड के, आप उनके लेक्चर्स या इंटरव्यू सुने ना, तो वहां भी कुछ ना कुछ क्लूज दिए होते हैं कि अभी इन एरियाज के अंदर जो है वो काम होना बाकी है, तो वो भी आप प्रोस्पेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं। टारगेट्स आपके क्या होने चाहिए? आपको पहली बात क्लियर होना चाहिए कि आपके रिव्यू पेपर का गोल क्या है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमेशा गोल ये रखें कि टू एडवांस द नॉलेज। ये ना रखेंगे मेरा पेपर पब्लिश हो जाए, गो कि मैंने यही काम किया हुआ है, लेकिन ये लिटरेचर पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमें मीनिंगफुल काम करना है। सिर्फ इसलिए रिव्यू पेपर नहीं पब्लिश करना कि ये पब्लिश हो जाए या इससे साइटेशंस बढ़ेंगी, बल्कि उससे कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो सोचना है, उसी तरह से उसे डिजाइन करना है। दूसरे नंबर पे कि हमारा मैसेज क्या होगा रीडर्स के लिए, और मैसेज में क्या है वही कि फ्यूचर क्वेश्चंस क्या हैं और डायनामिक्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड इन पर्टिकुलर टाइम क्या है। फाइनली टेक होम मैसेज आप उसके लिए क्या बनाते हैं कि जब वो आपका रिव्यू पेपर पढ़ लेगा तो वो समझेगा कि क्या मैंने कोई अच्छा डॉक्यूमेंट पढ़ा है।
या इस रिव्यू पेपर ने वाकई ही फील्ड में काम होने हुए काम को कवर किया है और एक रियल कंट्रीब्यूशन किया है। तो ये 3 सवाल हमें अपने आप से जरूर करने हैं जब भी हम रिव्यू पेपर लिखने का फैसला करते हैं, ताकि हमारा जो काम है वो एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो चला जाए। फाइनल हमारा जो रिव्यू पेपर है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या होनी चाहिए या क्या होंगी वो भी हमें डिसाइड करना है। सबसे पहले ऐसा डॉक्यूमेंट लिखना है जो वर्थ रीडिंग हो, लोग उसे पढ़ें तो उसे एज अ कंट्रीब्यूशन जो है वो उसे अंडरस्टैंड करें, डिक्लेयर करें। दूसरी बात यह है बाज़ औक़ात आप अपने फील्ड में रिसर्च पेपर पढ़ते रहते हैं तो आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पर रिव्यू पेपर लिखा जा सकता है। तो अगर वो अच्छा टॉपिक आपके दिमाग में रहेगा, उसे आप उसको रिव्यू पेपर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप नहीं करेंगे कोई और कर लेगा। तो हमेशा याद रखें कि जो अच्छा रिव्यू पेपर का कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है उसको टाइमली पब्लिश करें, ताकि वो आपके नाम के साथ एसोसिएट हो जाए, ना कि कोई और उसका जो है वो क्रेडिट ले जाए। टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन सारे कामों के अंदर। तीसरी चीज ये है कि अपने रिव्यू पेपर का लॉजिकल स्ट्रक्चर और फ्लो रखें, यानी आउटलाइन पे बात करेंगे हम कि कैसा आउटलाइन जो है वो हमने रखना है। आउटलाइन बेसिकली फ्रेमवर्क है, आप उसे बाउंड्री कह सकते हैं, इस पर डिटेल से बात करेंगे। फ्लो ये है कि आपका हर पिछला सेक्शन, सब सेक्शन अगले सब सेक्शन को सपोर्ट कर रहा हो। पढ़ने वाला जब आपके रिव्यू पेपर को पढ़े तो उसे ये समझ आए कि इट इज वर्थ रीडिंग अ डॉक्यूमेंट। वेल रिटन होना चाहिए। रिटन में जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, ग्रामर ठीक हो, सेंटेंस की लेंथ ठीक हो, आपके स्पेलिंग ठीक हो, आपका फ्लो और जो सेंटेंस चॉइस है, टेंस चॉइस है वो अच्छी होनी चाहिए। कहाँ पैसिव यूज करना है, कहाँ एक्टिव यूज करना है, इस बारे में मेरी एक वीडियो भी पड़ी हुई है थंब रूल्स फॉर साइंटिफिक राइटिंग के नाम से। उसमें मैंने ऐसी सारी चीजें जो है वो कवर कर दी है, तो आप उसको देखेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को जो है वो उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। फाइनली फोकस्ड एफर्ट चाहिए। रिव्यू पेपर में सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब हम लिटरेचर सर्च में जाते हैं तो हमारे सामने पेपर्स ही पेपर्स निकल आते हैं, और मीनवाइल क्योंकि रिव्यू पेपर आप एक दिन में तो नहीं लिख सकते, तो 1 महीना भी अगर आपको लग जाता है तो उस 1 महीने में भी हर रोज नए रिसर्च पेपर जो है वो आ रहे होते हैं। तो फिर बंदे का दिल चाहता है यार मैं इसे भी इंक्लूड कर लूँ, इसे भी इंक्लूड कर लूँ, वो फिर आपका फोकस जो है उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आप टाइमली उसको कंक्लूड नहीं कर पाते। तो टाइमली कंक्लूजन के लिए आपको फोकस रखना बहुत जरूरी है कि आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने रिव्यू पेपर के अंदर, क्या वो मीनिंगफुली अटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फोकस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये फोकस भी जो है वो आपको रखना है। फाइनली क्रिटिकल, जैसे पहले भी एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ समरी नहीं चाहिए या मतलब चंक्स ऑफ लिटरेचर नहीं चाहिए, उनके अंदर एक क्रिटिकल डिस्कशन का एलिमेंट भी होना चाहिए कि ठीक है ये रिजल्ट्स हैं, तो इन रिजल्ट्स की बेस पे हम एक पैरामीटर को एक पर्टिकुलर फैक्टर में कैसे जो है वो देख सकते हैं, वो पूरा सिनेरियो जो है वो आपने बिल्ड करना है। तो वो जितने क्रिटिकल आप खुद होंगे, जितना क्रिटिकली आप लिटरेचर सर्च करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसी हिसाब से राइट करेंगे, तो वो सारे एलिमेंट जो हैं वो आपके रिव्यू पेपर के अंदर एम्बेड हो जाएंगे। और ये हमारे लिए जरूरी है ताकि एक अच्छा रिव्यू पेपर जो है वो हम लिखें। देखिए एफर्ट आपने पूरी करनी है और टाइम उतना ही लगेगा जितना लगना है। तो एक अच्छे जर्नल में क्यों नहीं पब्लिश करते? अच्छे जर्नल में पब्लिश करने के लिए आपको ये सारे पैरामीटर्स जो हैं इनको मीट करना पड़ेगा, और जब तक ये आपके अपने जहन में नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छा रिव्यू पेपर जो है वो नहीं लिख सकते। तो ये था हमारा सेक्शन 1 कि जो एक रिव्यू पेपर है वो क्यों जरूरी है, टाइप्स ऑफ रिव्यू पेपर्स क्या हैं, और रिव्यू पेपर की जरूरत कब पड़ती है, और फाइनली हमारा रिव्यू पेपर लिखने के लिए हमारे एम्स क्या होने चाहिए, और हमारा जो एक अच्छा रिव्यू पेपर है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, ताकि जब हम एक अच्छी एफर्ट करने जा रहे हैं तो हमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, ताकि एक हम अच्छा डॉक्यूमेंट या एक अच्छा रिव्यू पेपर जो है वो पब्लिश करें जो हमारे सारे आउटकम्स को जो है वो अचीव कर सके। थैंक यू वेरी मच।